हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन आस्क जून 2019 booklet C and all questions asked in part B. Okay friends, first question is consider the vector space Pn of real polynomial in X of degree less than or equal to n and define map T P2 from P3 by T f of x equals to 0 to x f of t dt plus f dash x and dash is derivative of x. Then the matrix representation of T which with respect to the basis 1xx and 1x square x cube is. ओके फ्रेंड्स, हमें फाइंड करनी है मैट्रिक्स P2 से P3 से टेंड कर रही है. बेसिस ऑफ P2 आर 1x x क्यूब एंड बेसिस ऑफ P3 1x x स्क्वायर x क्यूब एंड मैप डिफाइन T f of x equals to this form. First element of domain is x 1 and put value of f of x equals to 1. So we get 0 to x f of t equals to 1 dt derivative of 1 equals to 0. So we simplify integration, we get x. T1 equals to x and can be written as 0 plus 1 x plus 0 x square plus 0 x cube, and we know that matrix order is 4 because the polynomial dimension has n plus 1. So 3 and 4 into 3, so order of matrix is 4 cross 3. And second basis is tx, integration by 0 to x t dt plus derivative of x equals to 1, and the simplification after we get t plus x square by 2. So we can written as tx equals to 1 plus 0x plus coefficient of x square equals to 1 by 2 plus 0x cube. Okay friends, and third and last tx cube 0 to x, sorry, यहाँ there is a x square 1x and x square t square dt derivative of x square equals to 2x. After simplification we get 2x plus x cube upon 3. So tx cube equals to 0 plus coefficient of x equals to 2, to then 2x plus x square coefficient is 0, then 0x square plus x cube upon 3. So column form of equation first, equation second and equation third. Then the matrix representation of T equals to 0 0 1 0 0 0 1 0 0. Equation second 1 0 1 by 2 0 1 0 1 by 2 0, and third equation 0 2 0 1 by 3 0 2 0 1 by 3, and options is second, so second option is true. Second question, let Px denote the characteristic polynomial of a matrix A, then for which of the following matrices Pax minus Pa inverse is a constant. For all options are given, and we find it Pax minus Pa inverse x equals to constant. Any matrices A given, Px is a characteristic equation polynomial of A, and Pa inverse x means characteristic polynomial of a inverse matrix. The difference between we get a constant number. Okay friends, we know that A inverse is equal to adjoint A upon mod A, यानी determinant of A. So in this case, if determinant A equals to 1, then we get Pax minus Pa inverse x equals to constant, otherwise we not get constant. Okay friends,
तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर डिटरमिनेंट कितना आएगा 12 माइनस 6, यानी कि डिटरमिनेंट कितना आ गया 6। तो हम जानते हैं कि जब जैसे ए इनवर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो एडजॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट और पी ए इनवर्स इन दोनों का हमको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तब हमको क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो चूंकि इस वाले केस के अंदर इसका डिटरमिनेंट क्या है 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमको जो टी स्क्वायर और टी की जो वेरिएबल है वो कैंसल आउट आपस में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट कैन नॉट टेक कैंसल वेरिएबल टी स्क्वायर एंड टी बिकॉज 6 is a denominator of PA inverse X. Suppose in this matrix characteristic polynomial t square minus 7t plus 6. Okay friends, suppose that PA inverse denominator is 6, तो minus t square upon 6 such that, तो both are cannot cancel out, it means we not get a constant number. तो options first is a discard. Same situation in options 2. Options 2 determinant of this matrix 12 minus 6 is 6, तो second options also a discard. In third options के अंदर चेक कर लेते हैं हम 9 minus 8 means determinant is 1, तो इन दोनों का डिफरेंस एक कांस्टेंट पॉसिबल है। तो हम चेक कर लेते हैं। वी नाउ दैट 2x2 मैट्रिक्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ टी, ट्रेस ऑफ टी मीन्स जो मैट्रिक्स हमको गिवन है प्लस डिटरमिनेंट ऑफ टी। तो पी ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया और पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स गिवन है उसका पॉलिनोमियल क्या आएगा ये, और ये पॉलिनोमियल आएगा इस इनवर्स का। तो जैसे इस दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0, तो 0 इसे क्या है कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं बिकॉज इसके अंदर डिटरमिनेंट क्या आ रहा है -1 आ रहा है। कितना आ रहा है -1, तो चेक कर लेते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पी इनवर्स जैसे चेक करेंगे हम तो ये आ जाएगी ए इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा ये वाला टी स्क्वायर ट्रेस -6 माइनस ऑलरेडी इन फॉर्मूला, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 60 और डिटरमिनेंट इज -1। तो जैसे इस दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -12t डिपेंड ऑन टी नॉट ए कांस्टेंट नंबर। तो इन दिस केस ऑप्शन 4 इज ए डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली फॉर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनाइजेबल ओवर आर। फ्रेंड्स वी नाउ दैट डायगोनाइजेबल ओवर आर if and only if minimal polynomial is a linear factor, first condition, and second condition है eigenvalues are different and real, then we can say this matrix is diagonalizable over R, and AM equals to GM, then we can say also okay this matrix is diagonalizable over R. तो we check about these properties. Minimal polynomial is a linear factor, and second if eigenvalues are real and different then we can say this matrix is diagonalizable over R. But in this question we check not diagonalizable over R. Okay friends, so first options this is a upper triangular matrix, so eigenvalues of this matrix 2, 3 and 3. तो possible minimal polynomial a minus 2i a minus 3i or a minus 2i का whole square a minus 3i. If this multiplication is 0 then we can say each factor is a linear factor of minimal polynomial, then this condition this matrix is a diagonalizable over R, otherwise not diagonalizable over R.
तो ऑप्शन फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एंट्रीज, वी टेक आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एंट्रीज. तो आइगन वैल्यूज आर 2, 3 एंड 3. तो टेक लीनियर फैक्टर, इफ 0 then diagonalizable over R, otherwise not diagonalizable over R. Okay friends, a minus 2i, a minus 3i. तो multiply after we get 0, 0 minus 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 not equal to 0. तो options first is not diagonalizable over R. तो in this question ask not for first options is a true options. Check other options. Same property for options 3. Upper triangular matrix, eigenvalues are 2, 3, 3. तो check linear factor a minus 2i or a minus 3i. 0, then we can say diagonalizable over R. A minus 2i, a minus 3i. So we get 0, 3 cross 3 order. So option 2 is a diagonalizable. But according to options, this options is cancel out. Options 2, 1, 1, 1, 1. So minimal polynomial, characteristic polynomial equation is lambda square minus 2 lambda, determinant is 0. So equals to 0. Lambda 0 and 2 both are distinct and real. So we know that property different eigenvalues means diagonalizable over R and real eigenvalue. So options second also discard, because in question mention not diagonalizable over R. So check options 4, 1, minus 1, 2 and 4. Characteristic equation is lambda square minus 5 lambda plus 6. Lambda square minus trace of lambda plus determinant. तो 4 plus 2 यानी कि 6. Eigenvalues are different and real. So options 2 is also a diagonalizable over R. So options first only true, because question mention क्या है, not diagonalizable over R. So according to options, only options first is a true options. Now question number is 5. Let V be the vector space of polynomial in the variable t of a degree at most 2 over R, and inner product of V is defined fg equals to integration 0 to 1 ft gt dt, and f and g belongs to V, and V w is spanned by 1 minus t square and 1 plus t square, and w complement be the orthogonal complement of w in V. The which of the following condition is satisfied for all h belongs to w complement. फ्रेंड्स इसमें हमको क्या गिवन है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है किस तरह से डिफाइन है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिफाइन है, और हमको एक एटमोस्ट 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल गिवन है, हम उसको कुछ भी मान सकते हैं. एटमोस्ट 2 यानी कि मैक्सिमम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हमको लेट करना है. अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है ये. ऑप्शंस गिवन है, एच इज़ ए इवन फंक्शन, तो नेगेटिव साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ऑड में नेगेटिव साइन पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. तो एच टी इक्वल्स टू 0 एज ए रियल सॉल्यूशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एच 0 इक्वल्स टू 0. देखिए फ्रेंड्स, W complement in V and H belongs to W complement. W complement in V. W complement be the orthogonal complement of W in V, and H belongs to W complement. It means W complement also belong in V, so H belongs to W complement, and HT is the polynomial at most 2 degree in T variable. तो लेट के हमने 2 डिग्री पॉलीमर at square plus bt plus c, and now f and g belongs to V because given in the question, and w is spanned by 1 minus t square and 1 plus t square. Both are different, not equal. It means use orthogonal property, uv inner product by 0. So according to question, first inner product by h with 1 minus t square, and second h with 1 plus t square. So orthogonal property use h 1 minus t square equals to 0, and again h 1 plus t square equals to 0. Use
डिफाइंड बाय इंटीग्रेशन फॉर्म. सो सॉल्व बोथ 1 and 2 as given at स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी एंड 1 माइनस टी स्क्वायर. सिंपल किया हमने, तो इसको सिंपल करने के बाद हमको क्या मिला, ये वाली कंडीशन मिल गई. राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 बिकॉज बोथ आर ऑर्थोगोनल ईच अदर. और सेकेंड को हमने सॉल्व किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई. तो दोनों इक्वेशन को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया. 3 वेरिएबल है, 4a 4b एंड 4c. तो a की वैल्यू हमने फाइंड की 5c, b की वैल्यू हमने फाइंड की 16c/3. दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू और b की वैल्यू को हमने c के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है. तो अब इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर. किसके अंदर करेंगे फ्रेंड्स, इस वाली इक्वेशन के अंदर. तो पूरा जो पॉलिनोमियल है वो किस में आ जाएगा, c वेरिएबल के अंदर, c कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा. और वेरिएबल क्या हो जाएंगे उसमें, टी स्क्वायर एंड t. तो हम इसका आगे देखते हैं. एच टी क्या आ जाएगा, a की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू पुट कर दी. तो एच टी सिंपली हमारे पास ये आ चुका है. अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या दे रखा है हमको, 0 पुट करने पे 0 आना चाहिए. हमने पुट किया 0, बट हमें क्या मिला 0 0, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, c बचा. और हम जानते हैं c नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एटमॉस 2 डिग्री पॉलिनोमियल है. तो c यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. अब आते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट के अंदर, चेक करते हैं ये ऑड है या फिर इवन है. तो इवन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है. तो हमने टी रिप्लेस किया -t से, तो हमें वापस एच टी नहीं मिला. तो ये ऑप्शन फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया. इसी तरह से ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा कि -t रिप्लेस करने पर हमें नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, बट इस कंडीशन में वापस हमको एच टी नहीं मिला. तो ऑप्शन सेकंड भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया. अब आते हैं हम एच टी इक्वल्स टू 0 हैज़ ए रियल सॉल्यूशन. तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल किया, तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. अब इसको हमने सॉल्व किया, तो हम जानते हैं कि रियल सॉल्यूशन कब मिलता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो. बट इस कंडीशन में हमको क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट हैज़ ए रियल सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर. देखिए फ्रेंड्स, for n belongs to n, which of the following is true. सिंपल सी हमने इनइक्वलिटी दे रखी है फॉर ऑल पॉसिबल फाइनाइट मैनी n के लिए. तो बहुत चारों ऑप्शंस गिवन है. तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम ऑप्शंस थर्ड और ऑप्शन फोर्थ को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं. और यहाँ पे हमें n बिलोंग्स टू n गिवन है इन द क्वेश्चन, बट हम यहाँ n कुछ भी ले सकते हैं. तो हम सिंपली n इक्वल्स टू 4 ले लिया हमने. तो चेक करते हैं, 4 + 1 5 माइनस रूट ऑफ 4 यानी कि 2. तो रूट ऑफ 4 यानी कि 2. तो वैल्यू ऑफ रूट 5 इक्वल्स टू 2.23. तो सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 0.23 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच इज़ क्या है, कंट्राडिक्शन. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये थर्ड और फोर्थ फॉल्स हो गए, क्योंकि 0.23 मिला, ये ना तो 1 से बड़ा है ना ही 2 से बड़ा है. तो दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए. अब आते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस की तरफ. अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर रैशनलाइजेशन करते हैं. अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं. तो हमने पहले ऑप्शंस लिया, फर्स्ट वाला ऑप्शंस ले लिया, a + b a - b यानी कि a² - b². सिंपल सा किया हमने ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया. अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास बचा √n ग्रेटर देन √n + 1 प्लस √n, बोथ साइड √n से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो कैंसिल आउट हो गया. अब हमें ये मिला √n + 1 लेस देन 0, विच इज़ नेवर पॉसिबल बिकॉज वी नाउ दैट n बिलोंग्स टू n. सो टेक n इक्वल्स टू 1. 1 + 1 √2 मीन्स 1.14 लेस देन 0, विच इज़ कंट्राडिक्शन. तो अब हम आते हैं, ये ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया. तो
अब आते हैं हम ऑप्शन सेकंड की तरफ, जिसमें इनइक्वलिटी का साइन लेस देन है। फर्स्ट वाले में इनइक्वलिटी का साइन क्या था, ग्रेटर देन था। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन की तरफ। सिंपल सा, अब इसमें लेस देन था और साइन चेंज था, तो इसमें साइन ऑपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, विच इज़ क्या है, पॉसिबल फॉर ऑल बिलोंग्स टू एन। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था, हमको सिर्फ एन को वेरी करवा के चेक करना था कि कौन सी इनइक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेसिक क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है और कुछ ही इंटीग्रल फार्मूला यूज़ होगा। सिंपली गिवन है रियल नंबर ए ग्रेटर देन जीरो, कंसिडर द ट्राइंगल विथ वर्टेक्स 0 ए प्लस आयोटा ए। मीन्स हमको 3 वर्टेक्स गिवन है, 0 0 a comma 0 and a comma a. If the delta is the given the counter clockwise orientation, then the contour integral close contour real z dz with the real z denoting the real part of z is equal to. We know that counter clockwise means अपोजिट डायरेक्शन में हमको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन। तो हमको वेक्टर्स गिवन है 0 0 ए और ए कॉमा 0, 3 वर्टेक्स हमको ट्राइंगल के गिवन है। तो हमने इससे एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर दिया, 0 0 ए कॉमा 0 0 0, और गिवन है काउंटर क्लॉकवाइज, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट साइड ऑफ क्लॉक, अपोजिट साइड ऑफ एनी क्लॉक। तो फर्स्ट फाइंड ओ ए पाथ, सेकेंड बी ए पाथ, थर्ड बी ओ पाथ। इन पाथ्स के अकॉर्डिंग हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन है हमको रियल जेड डी जेड, और वी नोट दैट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स एंड डी जेड इक्वल्स टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो सिंपल सा हमका हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया, एक्स डेल एक्स डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। टेकिंग फर्स्ट पाथ ओ ए, सेकेंड पाथ ए बी एंड थर्ड पार्ट बी ओ। फर्स्ट पाथ के अंदर लिमिट 0 से जो इक्वल है ना वैल्यू, उसको हमको क्या लेट करना है, उस फंक्शन की वैल्यू लेट करनी है। जैसे सपोज कीजिए इसके अंदर y इज इक्वल, y इक्वल्स टू 0 एंड डी वाई इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट 0 टू a. In this path same value x equals to a and dx equals to 0 because a is a constant, and limit 0 to a. And third path which is straight line, y equals to x, a it means y equals to x, so y equals to x, line dy equals to dx, and limit a to 0, limit a to 0 because path is a bo not ob, and 0 0 to a x dx plus second path o to a 0 to a iota dy, and third path a to 0 real z of x and dx plus iota dy. Integration and simplification, x square by 2, iota a is a constant and dy equals to y, 0 to a 1 plus iota is outside of the integration, and integration a to 0 x dx, x square by 2, and put the upper limit and lower limit, a square by 2 plus iota a plus 1 plus iota x square by 2, 0 to a, 0 पे 0 एंड a पर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। सिंपल किया तो हमको क्या मिला, आयोटा ए स्क्वायर बाय 2। ये इसका क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिकली। लेट सी बी द काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड circle of radius 1/2 center at iota, then the value of the contour integral dz upon z4 minus 1 is. हमको दे रखा है आयोटा सेंटर और 1/2 रेडियस, तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, ये क्लोज कंटूर कैसा बन जाएगा, z माइनस आयोटा मॉड ऑफ इक्वल्स टू 1/2। तो हमने ये ड्रॉ किया क्लोज कंटूर जिसका सेंटर कितना है 1,0,1 एंड 1/2 इसकी रेडियस है। तो हमने ये चेक किया, तो हम देखते हैं कि जब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के पॉसिबल रूट्स कितने हैं, 1 -1
आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो बट इस वाले कंटूर के अंदर ओनली फॉर आयोटा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ओनली जेड बराबर आयोटा लाई इन द कंटूर, वी नाउ दैट कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, बिकॉज आयोटा लाई इन द कंटूर, सो वी कैन यूज कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है? कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला 1/2 आयोटा क्लोज कंटूर एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो किस पे फाइंड आउट करते हैं हम? जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पे। तो हम बेसिकली ये वाला फंक्शन, ये वाला पॉलिनोमियल इसके अंदर लाई कर रहा है, ये वाला फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, जो लाई नहीं कर रहा है उसको हमने क्या कर लिया, नोमरेटर के अंदर लिख लिया, और पीछे डिनोमिनेटर में हमने इस वाली फॉर्म को क्रिएट कर दिया, और 2 आयोटा को हमने उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो जेड नॉट वैल्यू कितनी यहाँ पे? आयोटा। तो इस पर हमने जेड बराबर आयोटा पुट कर दिया। जैसे आयोटा पुट करेंगे तो इसकी बेसिक वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? -π/2 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था जो पार्ट बी के अंदर 3 नंबर में पूछा गया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीडी का क्वेश्चन है। कंसिडर द पीडी, हमें पीडी की फॉर्म गिवन है, वेयर पी एंड क्यू पॉलिनोमियल इन द 2 वेरिएबल्स एक्स वाई विच द रियल कोफिशिएंट, देन द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ पी एंड क्यू। तो हमें चेक करना है कि ये इलिप्टिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, या फिर इनमें से क्या कुछ हो सकता है। तो हम जानते हैं कि जब ये फॉर्म होती है पीडी की, ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन, इस वाली कंडीशन में जब ये फैक्टर ग्रेटर देन 0 देन हाइपरबोलिक, लेस देन 0 देन इलिप्टिक, इक्वल टू 0 मीन्स पैराबोलिक। तो चेक करते हैं हम, ये सबसे पहले ही फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ई की पावर एक्स स्क्वायर और ई की पावर वाई स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर और ई की पावर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4pq, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? पी एंड क्यू। तो अब देखिए, अब पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल, पी क्यू आर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल मीन्स एक्स एंड वाई। तो सपोज वी टेक पी एंड क्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी? पी ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब देखिए, ये वाली टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो और पैराबोलिक में हमें क्या मिलता है कि जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो तब क्या होता है? पैराबोलिक। बट ये वाली टर्म्स कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर पैराबोलिक का ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आते हैं हम लेस देन आर पर, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? आर से छोटी हो। तो आर सपोज करिए, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आर ले लीजिए, मैंने मान लिया 2 मान लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन ऑप्शंस को चेक करते हैं ग्रेटर देन आर के लिए। तो आर 2 ले लिया मैंने, तो अब ग्रेटर देन आर है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ जैसे 2 पुट करूँगा तो ई की पावर 4 माइनस 16, यानी कि ये वैल्यू क्या आ रही है? 0 से बड़ी आ रही है। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? हाइपरबोलिक। कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो? आर हो। तो आप देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर में क्या दे रखा है यहाँ पे? इलिप्टिक। तो इस कंडीशन से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर क्या मिल रहा है हमको? हाइपरबोलिक। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हाइपरबोलिक हमको किस पे मिल रहा है? ग्रेटर देन आर पर। तो लेस देन आर पर तो मिल नहीं सकता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। कैलकुलेशन और वेरिएशन का प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल है। एक्स डॉट बी द कर्व विच मिनिमाइज द फंक्शनल एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स डैश स्क्वायर टी डी टी फंक्शन हमको गिवन है और सेटिस्फाइड कर रहा है ये बाउंड्री कंडीशन से एक्स 0 पे 0 एक्स 1 इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 1/2 पे हमको वैल्यू चेकआउट करनी है। तो हम जानते हैं कि जब फंक्शन हो एक्स डॉट और टी के अंदर, जब आइलर इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट इक्वल्स टू 0। तो हम फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट का होल स्क्वायर।
तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा 2x माइनस डेल ओवर डेल टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स बार यानी आ जाएगा 2x डॉट इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई डबल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ रही +-1, तो सॉल्यूशन क्या आएगा ई की पावर के अंदर c1x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। जैसे बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर हम C1 और C2 की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये हमने C1 C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। अब C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर स्क्वायर माइनस 1। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 पर, तो रख देते हैं एक्स की जगह 1/2। ये हो चुका ई की पावर, इसमें से मैंने क्या लिया ई की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, पीछे रहा ई, यहाँ पे क्या रहेगा ई की पावर 1/2 जो कि मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो एक फैक्टर ऊपर नीचे वाले से कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा √e/e+1। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखिए तो ऑप्शंस फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। बेसिकली ये बीएससी लेवल का इसमें हमने सॉल्यूशन किया है, बस ओनली फॉर ये फार्मूला यूज़ हो रहा था। उसके बाद जो भी हमने किया है वो एकदम बेसिक लेवल का है। जैसे बीएससी में हमने पढ़ा होगा कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें m बराबर कितना आ रहा है +-1। सॉल्यूशन क्या होता है उसका c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स। और इन दोनों बाउंड्री कंडीशन से हमने क्या कर दिया, c1 और c2 क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दिए। और कैलकुलेट करने के बाद हमने इसमें सॉल्यूशन में इसकी दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हमको क्वेश्चन में 1/2 पर गिवन थी, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने बेसिकली टी की जगह क्या रख दिया 1/2 रख दिया। तो हमको क्या मिला √e/e+1 मिल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह भी सिंपल सा बेसिक और होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और हमको सिंपल सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन वेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ x² y" - 2yx = 0 दिख रही है हमको। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें हम बेसिकली क्या पुट करते हैं, z = log x, x = e की पावर z। In this equation right hand side equals to 0, it means pi equals to 0। only find CF जो कि इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो हमने कर दिया x² y" को हम क्या लिखते हैं d-1 और 2 एज इट इज़। तो इसके रूट के आगे -1 और +2, तो सॉल्यूशन क्या होगा e की पावर -z e की पावर +2z। तो अब देखिए हम क्या रखते हैं, e की पावर z को x पुट करते हैं, तो हमने वापस इसको x के वेरिएबल के अंदर लिख दिया। अब दो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास गिवन है, उससे हम क्या करेंगे, इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने सिंपल सी दोनों वैल्यू रख दी, ये रख दी। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करवा के C1 को एलिमिनेट करते हैं, और C2 की वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी आ गई हमारे पास 6/7। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/7। इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ऑफ y3, इट मीन्स x की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है एट x = 3 पर। तो हमने x = 3 पुट किया। पुट करने के बाद हमें क्या मिला 33/21। तो 3 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया, तो हमें क्या मिला 11/7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th ऑप्शन है। ये भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन हमें जून 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल था। अब इसके अंदर भी बीएससी लेवल की मैथ फॉलो हो रही है। सिंपल सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमने C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, और फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या पुट किया x = 3, तो हमें क्या मिला 11/7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 स्टर्म ल्यूविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर बेस है, और क्वेश्चन है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन y"x प्लस λ² yx = 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस गिवन हमको y0 = y π एंड y'0 = y' r। तो हमको लैम्डा चेकआउट करना है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल लैम्डा है जिसके लिए हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम जानते हैं कि लैम्डा पॉजिटिव गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा एज इट इज रखते हैं, और इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। वही बेसिक सॉल्यूशन है इसका,
जब डी क्या आ रहा है प्लस माइनस आयोटा लैम्डा, जैसे आयोटा आ जाता है इसके रूट के अंदर, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन साइन और कॉस के अंदर लिखते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, C1 कॉस लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, वाई डैश एक्स हमने निकाल दिया, ये आ गया इसका वाई डैश एक्स। अब हम क्या करते हैं, 1/1 इसकी बाउंड्री कंडीशन को पुट करते हैं, y0 बराबर वाई पाई एंड वाई डैश जीरो बराबर वाई डैश पाई। अब देखिए वाई डैश जीरो बराबर वाई ऑफ पाई पुट किया, पुट करने के बाद हमने C1 और C2 के फॉर्म में एक इक्वेशन क्रिएट कर ली। इसी तरह से सेकंड बाउंड्री कंडीशन से हमने C1 और C2 कंसिडर कर दी। अब हमको चूंकि लैम्डास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 और 2 को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। कब लिखते हैं, जब इसके लिए लैम्डा फाइंड आउट करना है और हम जानते हैं कि इसके हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इट मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको 0 मिलेगी। तो इनका मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, तो हमने क्या स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर लैम्डा पाई सॉल्व किया, इसको ओपन किया और स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। और हमको लास्ट एंड फाइनल क्या मिला, हमको -2 कॉस लैम्डा पाई इक्वल्स टू 2 पाई और कॉस लैम्डा पाई इक्वल्स टू 1। 1 कब मिलता है कॉस में, जब कॉस 2 पाई एन होता है। तो कॉस कॉस कैंसिल आउट एंड पाई पाई अगेन कैंसिल आउट और लैम्डा इक्वल्स टू 2। और इन दिस क्वेश्चन लैम्डा फॉर पॉजिटिव वैल्यू मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई एंड एन इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, जिसमें स्टार्टिंग के अंदर बीएससी लेवल की मैथ यूज़ हो रही थी और बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद हमने C1 C2 के फॉर्म में एक 2 इक्वेशन क्रिएट कर ली। और इन दोनों इक्वेशन को, बिकॉज इन दोनों के पास क्या है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इट मीन्स इनका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। तो हमने सिंपल सा सॉल्व करके जितना सिंप्लीफिकेशन किया इसका, तो 1 लैम्डा और लैम्डा 2 लैम्डा और 2 लैम्डा कौन मीन्स इसको अगर हम और फर्दर लिखे तो 2 लैम्डा 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0। तो वी नाउ दैट लैम्डा नेवर बी ए 0, लैम्डा 0 नहीं हो सकता है। तो 0 फिर क्या होगा 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0 और 1 को उस तरफ उस साइड ट्रांसफर किया तो क्या मिल जाएगा पॉजिटिव का 1। फिर हमको 1 को क्या लिख सकते हैं कॉस 2 पाई एन, यहाँ से हमको लैम्डा क्या मिल गया 2 पाई सॉरी 2n। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये, जो इंटीग्रल इक्वेशन की प्रॉब्लम है और बहुत कुछ इसके अंदर दे रखा है हमको। तो अब देखिए मैंने इंटीग्रल इक्वेशन बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पर। तो जब वोल्टेरा इक्वेशन होती है और इंटीग्रेशन के अंदर x माइनस टी की फॉर्म होती है, तो हम उसको बेसिकली लाप्लास मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास मेथड से सॉल्व करने पर ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता है, बस हमको लाप्लास मेथड के कुछ फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। तो देखिए y इज द सॉल्यूशन ऑफ वाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। तो हमने क्या किया इसको लाप्लास मेथड से सॉल्व किया। तो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज ए वोल्टेरा इक्वेशन, सो वी कैन सॉल्व बाय लाप्लास मेथड। तो लेट लाप्लास ऑफ y ऑफ x इक्वल्स टू y ऑफ p। तो टेकिंग लाप्लास बोथ साइड y ऑफ p, y ऑफ x का लाप्लास क्या हो गया y ऑफ p एंड 1 का लाप्लास क्या हो गया 1 ओवर p एंड x माइनस टी को ट्रीट करना है एज ए एक्स स्क्वायर। तो सॉरी x, तो x का लाप्लास हो जाएगा 1 ओवर पी स्क्वायर, बिकॉज वी नाउ दैट लाप्लास ऑफ x की पावर n फैक्टोरियल ओवर p n प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो n इक्वल्स टू 1, तो 1 ओवर पी स्क्वायर, तो 1 ओवर पी स्क्वायर और y ऑफ t का हो गया y ऑफ p और y ऑफ p को एक साइड ट्रांसफ़र कर दिया हमने और इस तरफ सिंप्लीफिकेशन किया, p स्क्वायर से एक p कैंसिल आउट हो गया। तो y ऑफ p की वैल्यू क्या आ गई p ओवर पी स्क्वायर माइनस 1। और ये किसका होता है लाप्लास कॉस हाइपरबोली x का होता है और साइन हाइपरबोली x का होता है 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1, ये होता है साइन हाइपरबोली x का होता है। तो चूंकि यहाँ ऊपर p है तो ये किसका हो जाएगा कॉस हाइपरबोली x का। और कॉस हाइपरबोली x को हम ये भी लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। और हम जानते हैं कि जो कॉस हाइपरबोलिक x की रेंज होती है वो क्या होती है 1 टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो और ये अब लोअर बाउंडेड है बट अबव बाउंडेड नहीं है। तो ये इट मीन्स ये
बाउंडेड नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है कि y इज़ ए बाउंडेड बट नॉट पीरियोडिक इन आर, चूँकि ये बाउंडेड तो है नहीं, और हम जानते हैं कॉस हाइपरबोला x पीरियोडिक फंक्शन नहीं है किसमें, आर के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। अब आते हैं हम ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर के अंदर। इसमें दे रखा है आर, इंटीग्रेशन साइन दे रखा है हमको आर, आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ लेस देन इन्फिनिटी आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आया तो ये फॉल्स हो जाएगा। और फोर्थ के अंदर क्या करना है, इस वाई और एक्स को हमने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर में ले लिया है। तो एक बार नोमिनेटर में चेक करना है, एक बार डिनोमिनेटर में चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड के लिए नोमिनेटर में फंक्शन पुट करना है और सिंप्लीफिकेशन है ये तो 1/2 बार ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर एक्स, और सिंप्लीफाई इस पर लिमिट पुट कर दी तो हमको क्या मिला, इन्फिनिटी, नॉट लेस देन इन्फिनिटी। हमको क्या मिला, इन्फिनिटी मिला है, जो कि लेस देन इन्फिनिटी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सेकंड पर, जिसमें फंक्शन को क्या करना है, डिनोमिनेटर में पुट करना है। तो पुट कर दिया, ई की पावर एक्स को मैंने बाहर ले लिया और ये सिंपली फंक्शन बन गया। ई की पावर माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव का ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब देखिए ई की पावर एक्स अगर मैं पुट करूँ और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ज़ीरो, और ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब देखिए ये कैसा फंक्शन बन गया, इस तरह सब चेंज करने पर 0 टू इन्फिनिटी 2 डी टी, और नीचे ई की पावर 2x था, यानी कि ई की पावर एक्स इक्वल्स टू टी, ई की पावर 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू किसकी होती है, tan इनवर्स टी की। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रेशन लिमिट तो क्या मिलेगा, 2 इन्फिनिटी पे π/2 और 0 पे 0, तो ये क्या मिल गया पाई, यानी कि 3.414 लेस देन क्या है, इन्फिनिटी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली 4 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। लेट एफ सी टू सी बी एंटायर फंक्शन सच दैट लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ 1/z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शंस गिवन है हमको। f इज़ ए कॉन्स्टेंट, f कैन हैव इनफाइनाइट मैनी जीरोज, f कैन हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट मैनी जीरोज, f इज़ नेसेसरी नोवेयर वनिशिंग। पार्ट बी का क्वेश्चन है, हमको एक ही एग्जाम ऑप्शंस टिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, f इज़ ए कॉन्स्टेंट, f इज़ ए कॉन्स्टेंट, सपोज कीजिए मैंने कुछ कॉन्स्टेंट ले लिया f ऑफ z इक्वल्स टू a, इसको 1/z से अगर मैं रिप्लेस करूँ तो वापस हमारे पास a ही बचेगा, ओके। या लिख सको 1/, बिकॉज इसके अंदर z वेरिएबल नहीं है, तो 1/z पे भी वैल्यू क्या रहेगी, a ही रहेगी। जैसे ही z टेंस टू 0 पुट करूँगा मैं तो वापस हमको क्या मिलने वाला है, a, जो कि इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ओके। अब मैं आता हूँ थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ 1/z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मीन्स इसके पास क्या है, पोल्स है, इसके पास क्या है, पोल्स है। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाए, इफ़ एंड ओनली इफ एफ जेड इज़ ए कॉन्स्टेंट, इफ इन्फिनिटी आ जाए, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ जेड इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि जैसे इसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी हमको गिवन है, अगर फाइनाइट गिवन है, तो अगर फाइनाइट गिवन है तो वो कॉन्स्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अभी हमने ऑप्शंस फर्स्ट क्या किया है, डिस्कार्ड किया है, तो आप उसमें देख सकते हो कि ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। कब, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए, अगर फाइनाइट गिवन होती तो हमें क्या मिलता, फंक्शन क्या मिलता, कांस्टेंट फंक्शन। तो बट हमको वैल्यू इनफाइनाइट दे रखी है, इट मीन्स ये जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का। अब डिग्री n है, इट मीन्स उसके पास n डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, फाइनाइट जीरोज होंगे। तो आप देखिए ऑप्शंस अगर सेकंड चेक करें तो इनफाइनाइट मैनी जीरो, तो ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और फोर्थ भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये नो वेयर वनिशिंग कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए एफ कैन हैज़ एटमोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरोज, बिल्कुल, यानी कितने जीरोज है इसके पास, n डिस्टिंक्ट जीरो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 15, और ये क्वेश्चन यूनिट 4 से है। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं LPP का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया ताकि
एक और क्वेश्चन 3 नंबर का आपके सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सके। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड हमको दे रखा है 5x + 2y अंडर द लीनियर कंस्टेंट x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू y, और ये कंडीशन दे रखी है। इससे हमने दो कंडीशन कंस्ट्रक्ट कर दी, कौन सी, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x + y लेस देन इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन से सिंपली एक हमने दो पॉइंट फाइंड आउट किए, x 0 पे 4 और y 0 पर 4, और इसी तरह से इस पे भी दो वैल्यू मैंने पुट कर ली। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मैंने इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम जानते हैं कि जब लेस देन इक्वल टू है तब जो ग्राफ की जो लाइन्स होगी वो कहाँ होगी, नीचे की ओर होगी, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू है तब लाइन की जो एरो होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। अब देखिए ये तो हमने हो गया ऊपर की तरफ और ये हो गया नीचे की तरफ, इन दोनों के लिए। अब देखिए x - y ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इट मीन्स x ऊपर की तरफ है और y कहाँ जाएगा, डाउन साइड की तरफ। तो हमारा कौन सा एरिया बन जाएगा, ये वाला एरिया शेडेड एरिया हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें से जो कॉर्नर पॉइंट है, जो हमको शेडेड एरिया मिला है उसका क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट लेने हैं हमको। कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये 4 कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे। उन कॉर्नर पॉइंट को क्या करना है, हमको इन z = 5x + 2y के अंदर पुट करना है। तो जैसे हमने इसमें पुट किए, x की वैल्यू 2, y की 0, x की 4, y की 0, x की 0, y की 2 एंड x की 0, y की 4। तो हमको ये 4 वैल्यूज़ मिली, किस पर, इन शेडेड एरिया के रीजन के अंदर। तो हमको चेक करनी है मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 20। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन के अंदर दे रखा होगा 20, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम कौन सा हो जाता, 4। किस पॉइंट पर, 0, 2 पर, और ये किस पॉइंट पर मिला हमको, 4.0 पे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके पार्ट सी के सॉल्यूशन आपको जल्द मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, और उनके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।